Students, today is Wednesday, April 28, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the physics class with a new lesson. So, students, previously in previous week, we discussed about measuring instruments. Before that, we studied about what are the physical quantities and how do we measure them. After that, we discussed some measuring instruments in which we greatly discussed about length measuring instruments starting from meter rule. Then we discussed measuring tape. After that, we discussed about vernier caliper and screw gauge. And after that, we moved on towards mass measuring instruments. What were those? The mass measuring instruments were beam balance, lever balance, electronic balance, and physical balance. Okay, so now we are moving over towards our next physical quantity, that is time. So how do we measure time? We measure time using watches. Okay, so in laboratories the time is measured using stopwatch. So stopwatch वो डिवाइस है जो छोटे से छोटे टाइम इंटरवल मीन दौरानिया ड्यूरेशन ऑफ समथिंग. सो स्मॉलर टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है. अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट मीन any activity that is going on. For example, we are taking a reading of a pendulum that is moving about its mean position. So we discuss about how many times it goes to extreme and then returns back and keeps on going. So to let's say we are saying that we have to count 10 durations of this pendulum. So for that we have to find time that to have 10 durations for this pendulum, how much time it will take. So we need a stopwatch that will start immediately when we started reading. Okay, and we will stop when we are stopping that reading. So after that we will calculate, we will see the time mentioned on the stopwatch. Okay, so there are two types of stopwatches, mechanical and digital, as shown in figure 1.17 and 1.18. So ये जो आपके सामने अभी शो हो रही है figure 1.17 में, it is mechanical stopwatch. Okay, a mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 second. मैकेनिकल और डिजिटल में क्या फ़र्क है? मैकेनिकल वो होती है जो एनालॉग रिस्ट वॉचेज़ हमारे पास होती हैं. सो इस तरह की अब हमारे पास एक स्टॉप वॉच होती है जो पहले दौर में यूज़ होती थी, आजकल तो यूज़ नहीं होती क्योंकि डिजिटल आ गई हैं. डिजिटल आर मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. So a mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum of 0.1 second. यानी एक सेकंड का भी 10वां हिस्सा it can be measured using a mechanical stopwatch. But digital stopwatches commonly used in laboratories can measure a time interval as small as 1/100. यानी एक सेकंड का 100th पार्ट, यानी हम उसे क्या बोलते हैं, सेंटी सेकंड. तो एक सेंटी सेकंड तक भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ डिजिटल स्टॉपवॉच. सो हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉचेज़. सो मैकेनिकल स्टॉप वॉच ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है हैज़ अ नॉब. ये जो ऊपर आपको इसके बिल्कुल टॉप पे जो आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है वो नॉब है. उससे रोटेट करके हम इसका टाइम एडजस्ट करते हैं, यानी ज़ीरो पे लाते हैं. सो मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच. It can also be used as a start, stop and reset button. The watch starts when the knob is pressed once. तो अगर हम इस नॉब को एक दफ़ा प्रेस करें तो उससे ये स्टार्ट होती है. फिर अगेन अगर हम दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टॉप्स. ठीक है. When pressed second time it stops the watch while the third press brings the needle back to zero position. तो दोबारा अगर ज़ीरो पोजीशन में लाने के लिए हमें थर्ड प्रेस करना पड़ता है. तो वो बेसिकली स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से ये जो नीडल होती है आपको, ठीक है, नीडल मूव करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन या ज़ीरो पे आ जाता है. ठीक है. So that's how we use mechanical stopwatch. Now, what is digital stopwatch and how do we use it? The digital stopwatch starts to indicate the time lapse as the start and stop button is pressed. As soon as start stop button is pressed again, it stops and indicates the time interval recorded by it between start and stop of an event. A reset button restores
इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग। सो इसके ऊपर एक स्टार्ट स्टॉप बटन होता है और फिर एक रीसेट बटन होता है। स्टार्ट स्टॉप बटन ये होता है कि अगर आपने कोई भी किसी इवेंट की रीडिंग लेनी है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। उसी बटन को अगर दोबारा प्रेस करेंगे जब आपका इवेंट ख़त्म हो रहा है तो आपने वो स्टॉप के ऊपर वही बटन दोबारा प्रेस करना है तो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। और अगर हमने उसकी रीडिंग को वापस ज़ीरो लाना है तो उस ज़ीरो यानी दोबारा ज़ीरो मिनट ज़ीरो हावर 0 मिनट एंड 0 सेकंड के ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको रीसेट बटन दबाएंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट device, next measuring instrument that is used in laboratories is a measuring cylinder. So students, previously which quantity we discussed to be measured using stopwatch? That was time. Now we are moving towards another quantity, that is volume. Volume क्या चीज़ होती है किसी भी चीज़ का? That is length multiply width multiply height. तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ और विड्थ, सिर्फ लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, अगर आप टेबल को देखें, टेबल आपके घर में पड़ा होगा, ठीक है, आप उस टेबल को देखें तो उस टेबल को ऊपर टॉप से अगर आप देखें तो एक चीज़ उसकी लेंथ बनेगी और एक तरफ उसकी विड्थ बनेगी, ठीक। तो अगर लेंथ जो स्केल से मेजर करें और विड्थ भी स्केल से मेजर करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये उसका क्या आ जाएगा, एरिया। नाउ वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये एरिया तो आ गया, अब वॉल्यूम क्या मतलब है कि ये नीचे बीनीथ यानी आपके फ्लोर से लेके फर्श से लेके ये ऊपर तक कितना है एरिया भी, और साथ साथ ये नीचे वाला हिस्सा कितना है। यानी अगर इन जनरल बात करूं तो इसी बोर्ड को, अब इस एरिया को हमने ऊपर से लेके नीचे तक स्टैकिंग करनी है इसकी, कि कितने ये बोर्ड्स मिल के ये कंप्लीट वॉल्यूम बनेगा इसका, ठीक है। तो दैट वॉल्यूम के लिए हम उसकी हाइट भी कंसिडर करते हैं, फ्लोर से लेके उसके टॉप एज तक जो आपके पास लेंथ बनेगी वो आपके पास हाइट बन जाएगी। सो जब हाइट उसको लेंथ और विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स एज ए वॉल्यूम, ठीक है। सो ये वॉल्यूम होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिनकी कोई शेप आपके पास क्या हो, रेगुलर शेप हो। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, फिर आपके पास आ जाता है स्क्वायर हो, तो इनके हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इर्रेगुलर शेप बॉडीज जो हों जिनकी कोई रेगुलर शेप ना हो, इर्रेगुलर का मतलब है ऐसी शेप जो ज्योमेट्री में ना आती हो, ज्योमेट्री से डिफाइन ना हो, ठीक है, ज्योमेट्री में जैसे ट्रायंगल, सर्कल, ऐसी कोई शेप ना हो, सो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर शेप बॉडी। तो उनका अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। सो देख लेते हैं मेजरिंग सिलेंडर क्या चीज़ है। A measuring cylinder is a glass or transparent plastic cylinder. It has a scale along its length that indicates the volume in milliliter as shown in figure. Measuring cylinders have different capacities from 100 milliliter to 2500 milliliter. ये आपको नीचे measuring cylinder नज़र आ रहा है। तो अगर आपने बचपन के अंदर फीडर पिया हो तो वो जो पाउडर आपकी मदर जो है वो जिस वो पैरामीटर को यूज़ करती थी पाउडर फिल करने के लिए, उसको वो पानी बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इतनी स्पून आपने डाली है तो उसके लिए कितने मिलीलीटर के पानी चाहिए आपको, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्केल होता था। तो वो छोटा सा एक सिलेंडर मिलता था, उसको हम बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। So that milliliter was unit of volume of that water that is used to be mixed with that powder to make milk for the child. So they come in different capacity in different ranges. So they are used to measure the volume of a liquid or powdered substance. तो liquid का भी और किसी powdered substance को अगर आप उसके अंदर डालो तो उसका भी वॉल्यूम आपको बता सकता है, प्लस irregular shaped solid objects का भी वॉल्यूम आप using measuring cylinder find कर सकते हैं. It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in liquid. ऐसी चीज़ insoluble कहते हैं जो हल ना हो, पानी के अंदर जो चीज़ हल ना हो जाए. फॉर एग्जांपल ये कि आप साल्ट का ब्लॉक डाल दें तो वो तो थोड़ी देर बाद वो साल्ट जो है वो पानी में डिज़ॉल्व हो जाता है, वो तो सोल्यूबल सोल्यूशन बन जाएगा. तो ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो पानी के अंदर क्या हो, इनसोल्यूबल हो, सॉल्व ना हो सके, उसके अंदर डिज़ॉल्व ना हो सके. The solid is lowered into a measuring cylinder containing water liquid. The level of the water liquid rises. The increase in the volume of the water liquid is the volume of the given solid object. तो ये आपको measuring cylinder नज़र आ रहा है आपके सामने. तो इस पे देखें स्केल लगा हुआ है कि 0 मिलीलीटर से शुरू हो रहा है और 200 मिलीलीटर लेफ्ट साइड वाला है.
और दूसरी तरफ भी आप देखें तो 0 से 200 मिलीलीटर। अब क्या किया है उसने, पानी डाला है इसके अंदर और अब वो मेजरमेंट ले रहा है, रीडिंग ले रहा है। तो रीडिंग हम इससे कैसे लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होके इसको देख रहे होते हैं। तो ये उसने बताया इनकरेक्ट पोजीशन और करेक्ट पोजीशन। तो इनकरेक्ट पोजीशन ये है कि अगर आप ये जो सर्कल बन रहा है ना पानी का, कि पानी की एक लेयर, अपर लेयर नज़र आ रही है आपको, ये 120 के अराउंड, ठीक है। तो अगर आपने इस लेयर को देखना है तो आपको हमेशा इसके पैरेलल होके देखना पड़ेगा, ना आपने ऊपर से होके देखना है और ना आपने नीचे से होके देखना है। बेसिकली क्या देख रहे होते हैं आप, हम ये देख रहे होते हैं कि ये जो पानी का ऊपर रिंग बन रहा है ये स्केल में कौन सी लाइन के साथ मिल रहा है, ठीक है। ये जो स्केल गिवन है इसमें कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है। सो जो लाइन आती है तो वो हम काउंट कर लेते हैं जी कितने मिलीलीटर है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये आ रहा है 100 और 120 के दरमियान। सो अगर काउंट करें 100 और 120 के दरमियान, ये जो सेंटर वाली लाइन है, जो मिड लाइन है, तो 100 और 120 का हाफ क्या, मिड क्या बनता है 110। सो दिस मीन्स ये 110 होगी और आगे छोटी वाली लाइन 115 होगी और ये 120 के करीब ट्रीन है, 115 और 120 के करीब है वो ग्रीन सर्कल आ रहा है। राइट वाले में अगर आप देखें और लेफ्ट वाले में देखें तो दोनों में यही केस है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखें 120 और 115 वाली ये बनती है, देखें 100, फिर 105, 110, 10 एंड 115, 15 और 120 के दरमियान। सो एयर इट कम्स एज 117, हम अज्यूम करेंगे कि ये कितनी है 117। तो ये होगा कि अगर आपकी पोजीशन डिफरेंट है, अगर आप ऊपर से होके देखेंगे तो आपको ये रिंग नीचे वाली लाइन यानी 115 पे नज़र आएगा, अगर नीचे से होके देखेंगे तो ये आपको 120 पे नज़र आएगा। सो अगर आप करेक्ट पोजीशन से इसको देखेंगे तो इट कम्स एज 117 मिलीलीटर, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। So now how to use this measuring cylinder? So while using measuring cylinder, it must be kept vertical on a plane surface. Take a measuring cylinder, place it vertically on the table, pour some water into it. Note that the surface of the water is curved as shown in figure 1.19. ये वही जो पीछे हमने फिगर देखी है कि वाटर की सरफेस वो एक ओवल या एक सर्कुलर शेप बनाए। The meniscus of the most of the liquids curve downward, while the meniscus of the mercury curves upward. meniscus किसको बोलते हैं, जब हम पानी किसी गिलास के अंदर डालते हैं ना तो आप उसकी अगर शेप देखें, ठीक है, अपर जो पानी की ऊपर वाली तय जो लेयर बन रही होती है, एक तो वो सर्कल बना रही होगी और सेंटर में से वो नीचे होगी, कॉर्नर उसके आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, तो उस चीज़ को मेनिस्कस बोलते हैं, उभरा हुआ कोई चीज़ होना, ठीक है। सो जो लिक्विड्स होते हैं नॉर्मली उनकी जो मेनिस्कस होता है वो डाउनवर्ड होता है, जबकि जो मरकरी होता है, मरकरी क्या होता है आपके पास, ये जो थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है, कि थर्मामीटर हम जो अपने माउथ के अंदर प्लेस करते हैं टेम्परेचर रीड करने के लिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, तो वो मरकरी वो ये होता है कि जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो राइज़ करता है, ख़ुद उसका लेवल राइज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से मरकरी जो है वो उसका जो मेनिस्कस होता है या उभरना है वो ऊपर की तरफ होता है, ना कि नीचे की तरफ, ठीक है। So it is incorrect to note the liquid level keeping the eye above the level of the liquid as shown in figure, जो हमने पीछे देखा है। When eye is above the liquid level, the meniscus appears higher on the scale. Similarly, when the eye is below the liquid level, meniscus appears lower than the actual height of the liquid. यही चीज़ मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी है कि हमने उसको पर्टिकुलर उसकी हाइट यानी उसको पैरेलल जाके मेनिस्कस के पैरेलल से जाके देखना है, so that we can take a clear reading. Now next is ये मैंने आपको बताया था कि वो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था कि मैंने ये बताया था आपका कि उसका आंसर बुक में है, तो वो बुक में ये है आंसर उसका कि हाउ वी यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, हम इसी मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं, यानी इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। लेट्स से कि लिक्विड से फिल किया हुआ है मेजरिंग सिलेंडर जो कि 200 मिलीलीटर का है, वो लेट्स से कि उसके वाटर है जो अभी वॉल्यूम है वाटर का वो है 100 मिलीलीटर जो हमने पानी उसके अंदर डाला हुआ है। अब हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पेंसिल है या आपके पास शार्पनर है, इस तरह की कोई चीज़ है जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या पेंसिल शार्पनर की लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं? नो, इट इज़ उसकी कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती। सो इसलिए हमें इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करना पड़ता है। तो
वो एक लिक्विड का एक लेवल होगा। लेट्स से कि मैंने पानी रखा है उसके अंदर 100 मिलीलीटर, तो जब मैं ऑब्जेक्ट डालूंगा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम पानी के अंदर जब डिप करते हैं तो क्या होता है, पानी का लेवल थोड़ा सा राइज होता है। तो ऑब्वियसली वो जो पानी का लेवल जितना राइज होगा, जब वो ऑब्जेक्ट जो भी आप डाल रहे हो पानी के अंदर, जब वो कम्प्लीटली डिप हो जाएगी तो इसका मतलब है वो कम्प्लीट एरिया उसने कवर कर लिया, वो पानी के अंदर कम्प्लीटली चली गई है। तो जितने वाटर मालिक्यूल्स को उसने डिस्टर्ब किया हुआ है वो उतने लेवल ऊपर आ जाएगा। सो हम ये नोट करते हैं, लेट्स से कि हमने इनिशियली कहा कि 100 मिलीलीटर के ऊपर था, तो जब हमने कोई ऑब्जेक्ट लेट्स से एक मेटेलिक बॉब डाला या पेंसिल डाली या शार्पनर डाला, तो उसकी वजह से पानी का लेवल राइज होकर 100 से आ गया 105 मिलीलीटर के ऊपर। सो दिस मीन्स कि जो पेंसिल का या शार्पनर का या जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया उसका वॉल्यूम कितना हुआ, 105 में से 100 माइनस करें तो 5 मिलीलीटर। So this is how we can find the volume of an irregular shaped solid using a measuring cylinder. So measuring cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid that sinks in the water. Sinks mean डूब जाना. Let us find the volume of a small stone. अगर हम स्मॉल स्टोन का फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ग्रेजुएटेड कहते हैं जिसके ऊपर स्केल लगा हो, ठीक है। नॉर्मली आपके पास ग्लास होता है, ग्लास जो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, क्या उसके ऊपर स्केल लगा होता है कोई चीज़ मेजर करने के लिए? नो, देयर इज़ नो सच स्केल। सो हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर उसको इसलिए कहते हैं उसके ऊपर प्रॉपर स्केलिंग हुई होती है, कितने मिलीलीटर, ठीक है। सो टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, नोट द वॉल्यूम VI ऑफ द वाटर। VI का मतलब है इनिशियल, जो इनिशियली आपने पानी डाल के पहले वॉल्यूम वाटर का फाइंड किया ऑफ वाटर इन अ सिलेंडर। टाई द सॉलिड विद द थ्रेड। अब वो जो सॉलिड या स्टोन आपने डिप करना है उसको एक थ्रेड के साथ, धागे के साथ बांधें, ठीक है, और उसको पानी के अंदर डिप करें और लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट इज़ फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। इमर्स कहते हैं कम्प्लीटली पानी के अंदर चले जाना, डूब जाना। सो जब वो कम्प्लीटली उसके अंदर डूब जाएगा तो उसके बाद दोबारा आप रीडिंग लें, वॉल्यूम फाइंड करें, तो दैट वॉल्यूम विल बी द VF। VF मीन फाइनल जो रीडिंग है, फाइनल वॉल्यूम। सो इनिशियल मीन जब हम इवेंट हमारा स्टार्ट हो रहा होता है तब हम रीडिंग लेते हैं, और फिर हम फाइनल जब इवेंट कंक्लूड हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको स्टॉप वॉच का बताया कि इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास टाइम इंटरवल आ जाता है, ठीक। सो इसी तरह यहाँ पे भी है, एक फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस किया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ गया, दैट इज़ VF माइनस VI, जो कि जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया उसमें 105 में से माइनस 100 किया तो हमारे पास 5 मिलीलीटर आ गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। Hopefully you guys have learned, and today we are going to complete over this chapter with while studying the measuring instruments. We are left with one more topic, that is significant figures, and it is very important and very interesting topic to be understand. Just we have 5 rules to count the significant figures in a measurement. कोई भी हम measurement लेते हैं, कोई वैल्यू, जैसे मैं उस दिन आपको प्रीफिक्सेस पढ़ा रहा था, तो प्रीफिक्सेस के लिए हमने वो एक बड़ी सी वैल्यू लेट्स से 0.0000543 सेकेंड्स, तो वो उस तरह की हमने कुछ रीडिंग्स देखी थी। तो इस तरह की हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, उसमें से हमने ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट मीन जो ऐसे डिजिट्स जो अहमियत के अमल है, जिनकी कोई वैल्यू है, जिनकी कोई वर्थ है, सो वो फिगर्स हमने फाइंड करने हैं। उसके लिए कोई रूल्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली यू गाइज हैव लर्नड वेल अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कंप्लीट योर होमवर्क since we have already done this in our homework. If you want to do some homework, you will have to write this question, that question which I give to you without answer. You can write that answer from the book, or you may mark it on the book as well, like starting from measuring cylinder to ending at solid will be VF minus volume of the solid will be VF minus VI। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ इसका आंसर है, ठीक है। तो आप उसको सरसरी से याद रखें फॉर आउन अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेजरिंग सिलेंडर से हम इरेगुलर शेप बॉडी का कैसे फाइंड करते हैं, बाकी एज इट इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, बट यू हैव नाउ हाउ ऑफ दैट। So that's all from today. Thank you for joining. Hope to see you in the next class. Thank you. Allah Hafiz.